in the case studies, and then we'll go into writing some case studies. But how many of you have read the analysis of ethics paper that had put on your group by any chance? Many of you don't know that that was put up on the group after the mains exam. I had put up an analysis of the ethics paper on the group. Now I want you all to, after the class of course, to go back, search in your groups and read the analysis of the ethics paper that I had given. Why is it necessary? Because you need to understand what ethics is all about. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, what I say is, when we are studying ethics, many of you study only bookish ethics. आप बुक्स पढ़ते हो, आप नोट्स पढ़ते हो, लेकिन जब यूपीएससी में लिखने जाते हो या अभी एमपीएससी में लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि बुक्स में जो पढ़ा था, राइट, वो anyone who is experienced, anyone who is well read compared to you, he'll understand that what you've written comes from the books. And the very nature of the paper this year was UPSC was expecting you not to write anything from the books, right? Because we live ethics every day, and I'm sure you all know this, you experience this, right? We all experience ethics. Now, for example, this is a very common case study that was, in the earlier times in UPSC asked that you're going for an interview and you face with an accident. Someone else faces with an accident and what you're supposed to do, right? So you come across such kind of situations almost on a daily basis, right? जब घर से क्लास आ रहे हो तो भी कुछ तो एक ethical dilemma हो जाता है, आप सोचते हो कि क्या करें, या बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है, हम वी डोंट नॉर्मली गो टू हेल्प एंड वी आर इन सम काइंड ऑफ हरी एंड वी वांट टू जस्ट मूव आउट ऑफ दैट सिचुएशन. Okay, so ethics is what is ethics? You're living ethics every day. You should basically understand this first. Every one of you who is studying ethics only from the books, you're doing it in the wrong way, right? Ethics अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अच्छे से लिखना है, स्पेशली सेक्शन बी जो है आपका केस स्टडीज का, तो आपको जो ऑब्जर्वेशन करते हो आप क्लास में, घर में, सोसाइटी में, रोड्स पे, फंक्शंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, प्राइवेट लाइफ में, हर जगह आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना है कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है. बहुत बार ऐसे होता है, ये सिचुएशन एथिक्स बेसिकली क्या होता है कि लीगल है लेकिन इमोरल है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. तो when you're writing your case studies, why do I want to briefly first go into how to address the case studies? Because I'm sure many of you still are not very clear with how to approach a case studies. Of course, कुछ बहुत ही कम सेशंस हुए आप पे, तो पहले ये देखेंगे कि उसको एड्रेस कैसे किया जाए. सबको स्ट्रक्चर पता होता है, मतलब you start with an introduction, then you find out the stakeholders, you find out the ethical dilemma in the case study. You come up with the solutions, you give the most appropriate, practically appropriate solution as your own. You explain the solution, all the logical steps that you would take in going forward with the decision. And then you finally conclude the case study, right? Here's again a clear structure as the case studies, right? So case study is not about structures. When we are writing answers, we discuss structures a lot. But remember, case studies, structure is a very small part of case studies. Why? They're not giving you marks for the structure, right? They're giving you marks for the analysis, logical analysis, the thinking process that you put in the case studies. आप क्या सोच रहे हो जब लिख रहे थे केस स्टडी को, तो आप क्या सोच रहे थे, क्या सोच के लिखा आपने, उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया आपने, उसमें से कौन से एथिकल डिलेमास आपको पता चलते हैं. स्टेक होल्डर्स, जैसे हम स्टेक होल्डर्स लिखते हैं तो क्यों लिखने होते हैं, आप ऑफिसर हो और कुछ हो जाता है मान के चलो, तो एक बहुत फेमस सेइंग है, द जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन, है ना. नॉर्मली ऑफिसर को क्या करना होता है कि दिस इज नॉट सफिशिएंट दैट यू ओनली डू जस्टिस,
in a particular case, people should see you doing justice. Why? That sends a message across. मैंने बहुत बार क्लास में कहा होगा, in the olden times, in the kings and empires, people were punished in the squares publicly, right? Why was that so? They could have been hanged inside, they could have been tortured inside, but the kings, the emperors wanted people to see that if anyone does any wrong, this is what they're going to face with. These are the consequences they'll be facing. And this sent a message across the kingdom or the empires that the king is just and he does justice. है ना? तो स्टेक होल्डर्स हम लिखते हैं, तो एज एन ऑफिसर इमेजिन कि एक सिचुएशन हो गया, आपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और आपने सॉल्यूशन भी निकाल लिया, लेकिन एक ऐसा रह गया स्टेक होल्डर जिसकी तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो वो सॉल्यूशन नहीं होता है. दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, राइट? ये ओनली हाफ सॉल्व प्रॉब्लम होता ही है अगर कोई स्टेक होल्डर अनइंटरेस्ट रहता है. तो बेसिकली ये सोचना शुरू करो कि आप एक ऑफिसर हो. I don't know if you remember this, that I had told you very early in the beginning that you start behaving like an officer, you start thinking like an officer, you start acting like an officer, right? That really makes a difference. I don't know how many senior officers you have come across, IS officers or any officer from UPSC. You will find that they are totally a class apart. You'll see your friends who before the training were very normal individuals just like you, but after the training they are transformed into something which they were not. है ना? लबासना में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि लबासना से बाहर जो आता है वो पहले जैसे नहीं आता है. आपके बहुत सारे दोस्त, आप भी जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप जब जाते हो और जब आते हो ट्रेनिंग के बाद, तो बहुत सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आप में होती है. तो एथिक्स क्या है? बेसिकली एथिक्स ये है कि यूपीएससी को ये देखना है कि क्या आप ऑफिसर बन सकते हो, क्या आप ऑफिसर की तरह सोच सकते हो, क्या आप ऑफिसर की तरह क्लैरिटी ऑफ थॉट आप में है, क्या ऑफिसर की तरह एम्पैथी आप में है. सिंपैथी नहीं बोल रहा, एम्पैथी आप में है, राइट? क्या आप जस्ट हो, क्या आप न्यूट्रल हो, मतलब क्या आप में क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, क्या आपको लॉ की समझ है, क्या आप मॉरल हो. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो यूपीएससी को टेस्ट करनी है. तो बेसिकली व्हाई डू आई वांट यू पीपल टू रीड द एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स एथिक्स पेपर इज बिकॉज I don't want you to be, or I don't want you to sound bookish when you start writing your answers for ethics, be it part 1 also. Part 1 में of course definitions आएंगे या कुछ bookish content आएगा, लेकिन उसको explain आप जब करोगे, examples आप जो दोगे वो of course bookish नहीं होने चाहिए, बुक में होते भी नहीं है. और इतने क्लीशे हो गए बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर आप लिख भी दिए आपने तो एग्जामिनर तुरंत पहचान लेगा, जिसने भी एथिक्स पढ़ा होगा वो तुरंत पहचान लेगा कि आपने किसी बुक में से इसको देख के लिखा है. तो चैलेंज इन द एथिक्स पेपर, like I said, that you don't only write good answers, you write different answers, is very important in this competitive UPSC exam, that you are not only writing your best answers but you also write different answers. क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहिए कि किसी ने मेरे पहले वाला आंसर, उसका भी बेस्ट आंसर था, मेरा भी बेस्ट आंसर है, तो मुझे भी 5 मार्क मिल रहे हैं, उसको भी 5 मार्क मिल रहे हैं, तो मैं आगे नहीं जा रहा हूं उससे. If I do something different along with my best answer, then I get 5.5 mark or a 6 mark, and that is how I go or jump ahead of the competition. Ethics में ये और बहुत जरूरी है. क्यों? Basically you all understand that UPSC is a subjective exam. Now of course MPSC also. There is a lot of subjectivity involved. You will not know the reason why you've got such marks, or you'll not know the reason why you've got less marks than expected. Many times this happens that you feel that this is one of my best attempts. मैंने सब कुछ दिया, बहुत अच्छा रहा पेपर, और मार्क्स नहीं आते as expected. Why? Because that subjectivity is going to come into your papers and it is going to be highest in your ethics papers. क्यों? एथिक्स का देखो, जीएस में आप जब आंसर्स लिखोगे, अगर हिस्ट्री का आंसर हम सब लिखे, आपको पूछा जाए 1857 जो रिवोल्ट हुआ उसके कॉजेस बताओ, क्या आपके कॉजेस मेरे कॉजेस अलग हो गए?
नहीं ना, सेम ही होंगे, वो कुछ अलग नहीं हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स पूछ लिया ज्योग्राफी में, तो आपका आंसर और मेरा आंसर अलग नहीं हो सकता है, वो सेम ही होगा। अब पॉलिटी में पूछ लिया फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका भी सेम है मेरा भी सेम है, वो अलग नहीं हो सकता है। हाँ, आईआर में मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ उसका इंपैक्ट क्या होगा इंडिया पे, तो आपके पॉइंट्स मेरे पॉइंट सेम ही होंगे, कुछ गलत अलग नहीं लिख सकते उससे। इकोनॉमी में मतलब कोई पेपर देख लो जीएस का, कोई कन्वेंशनल कोई नॉन कन्वेंशनल टॉपिक ले लो आप, उसमें आपका मेरा आंसर बहुत डिफरेंट नहीं हो सकता, या आपके कॉम्पिटिटर से बहुत डिफरेंट नहीं हो सकता। At most what is going to be different, my examples might differ, my analysis might differ, but how much is the scope for differentiation? Very minor. But when it comes to ethics, remember, my case study will be completely different from your case study. केस स्टडी में कुछ भी सेम नहीं हो सकता है, ऐसे मतलब टोटली 100% आपकी अलग मेरी अलग आपके कॉम्पिटिटर की अलग, ये हो सकता है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन सब कुछ जो लिखोगे आप, ये एनालिसिस, आपका ऑब्जर्वेशन, आपके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ अलग हो सकता है। तो एक ही पेपर है ये जिसमें आपके पास कोई मॉडल नहीं होता है। मैं भी, जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ हम मॉडल केस स्टडी डिस्कस करेंगे। क्या इसका मतलब ये है कि यही सही तरीका है केस स्टडी लिखने का? ऑफ कोर्स नॉट। There is no one common way of writing a case study. You can 100% differ from what I say, what your friends say, what your faculty say, or what anyone else says, provided it has to be according to the demand of the paper. इसका ये भी मतलब नहीं कि कुछ ही दुनिया भर का अलग लिख लिया आप, वो भी नहीं चलेगा। एक्सपेक्टेड क्या था उसको आपने लिखना है। एथिकल डिलेमास आपके और मेरे एक ही होंगे, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि डिलेमा है, आप उसको फेस कैसे करोगे, ये अलग हो सकता है हम में से, राइट? कोई इंटीग्रिटी हो, प्रोबिटी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, बहुत सारे इश्यूज आएंगे एथिक्स में से, केस स्टडीज में स्पेशली। बेसिकली आप जो सेक्शन ए में सीख रहे हो उसी का तो एप्लीकेशन करना है आपको सेक्शन बी में। लेकिन इन डूइंग दिस, रिमेंबर, योर अप्रोच can be and should be different from my approach or anyone else's approach. I don't want you to match your case studies with someone else's and say that iska अच्छा है या मेरा अच्छा है, ये खराब है वो अच्छा है. There is nothing as such. Okay? Because what is going to appeal to the examiner is not known to us. What we can do is we can move closer to a standard format of writing and case study. तो क्लास में हम क्या डिस्कस करें? मैं आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूं, समझ लो। ये जो मेरा पॉइंट होगा उससे अलग आपका पॉइंट हो सकता है। आपको पॉइंट जो सही लगे वो शायद मुझे सही नहीं लगेगा। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिबेट ऑफ हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग व्हेन वी आर राइटिंग केस स्टडीज, बट व्हाट आई वांट इज यू शुड बी अ एम्पैथेटिक, थॉटफुल पर्सन व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर केस स्टडी। केस स्टडी में ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी होता है। जिस किसी केस स्टडी में बुकिश टच आएगा कि बहुत बुकिश लिखे आपने केस स्टडी को, तो समझ लेना आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। Normally in all the GS papers, I in fact want you people to go through different scorecards of the toppers and people who are selected and people who are not selected also, right? Now, when I'm saying this, of course, I did not know this when I was supposed to write the paper for ethics. It comes with experience. So you're also going to learn with experience. Why do I want you to compare the mark sheets of people, different toppers, and who are into the services, who are not into the services? There's no difference between who's not selected and the one who is selected. Intellectually बहुत difference है, ऐसा नहीं होता है यूपीएससी में। लेकिन रेंज ऑफ मार्क्स अगर आप देखोगे तो जीएस के जो रेंज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते। Your score in GS1, everyone will be somewhere in between 90 and 100. A good paper, or maybe the better one will be 105, 10.
Same applies to paper 2, paper 3. It is only in ethics that we see a huge difference in the marks. And this is not because I'm saying, this is my observation. I want you people also to go and observe the different mark sheets. Most probably, the difference between a person who is in and the person who is out is his marks in ethics. Ethics, your marks in ethics can range from anywhere between 18. देखो कोई मेंस में जाता है ना तो ऐसे ही नहीं जाता है. यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी एक टास्क है. आप क्वालिफाई कर लिए इसका मतलब आप में कुछ है, इसलिए आप क्वालिफाई किए. मेंस जब लिखोगे तो ये नहीं होगा कि आप बाकी से बहुत ही कुछ तो यूजलेस हो और आपका पेपर अच्छा ही नहीं होगा. ऐसे कभी नहीं होता है. मेंस में जो जा रहा है बंदा उसमें कुछ तो है, इसलिए वो मेंस लिख रहा है. तो एथिक्स में क्या होता है ना, रेंज बहुत बड़ी होती है. यू कैन हैव 80 मार्क्स ऑल्सो इन एथिक्स. You can have 120 also. Or for example, Shakti Dubey, she had 143 marks in ethics. Imagine the range. 80 marks किसी को मिले और किसी को 140 marks मिले. 60 marks तो कुछ लोगों को पेपर में मिलता है, जीएस के पेपर में 1, 2, 3 में कहीं. तो आपका रिजल्ट लाने में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था that if you want to get selected into this exam, focus on 3 areas: essay, ethics and optionals. We are all wasting our time on the GS paper. I use this strong word, we are wasting time, because I know the output that is going to come is not going to take me on that side of the line. But you focus on your ethics paper, your essay paper. कौन सा जीएस का पेपर है जो आपको 1 to 3 में से, ऐसा कौन सा पेपर है जो आपको 140 मार्क्स देगा? कभी किसी जीएस का एक एग्जांपल देखा है आपने जीएस का पेपर जिसमें 140 मार्क्स हो 1 to 3 का? मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में. क्यों? लिमिटेशंस है, ये समझो पहले. तो एथिक्स में आपको क्या करना है? यू डोंट वांट टू बी इन द ग्रुप ऑफ 80s. You want to be somewhere in the 120s. Best. शक्ति दुबे मैम का छोड़ दो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सेप्शनल केस मान के छोड़ दो. 140 आएंगे, 143 आएंगे, नॉट नेसेसरी, नॉट ऑलवेज, बट 125 is what you can target, right? But in doing so, remember, again, within ethics also, section A is not going to decide the range. Why? My section A and your section A is almost going to be similar. What is going to differentiate my marks from your marks is the case studies. Case studies में बहुत रेंज वेरी करेगा कि आपको 40% मार्क्स मिल रहे हैं या आपको 60% मार्क्स मिल रहे हैं. मान के चलो सारे केस स्टडीज में मुझे 40% मिले, आपको 60% मिले, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, 15-20 क्वेश्चन मार्क्स से आगे निकल जाओगे. तो यही डिफरेंस है. 80 में से 100 पे जाना और 100 पे से 120 पे जाना, ये डिपेंड करेगा आपके केस स्टडीज पे. तो केस स्टडीज लिखेंगे कैसे? That is a big question, because I spoke to Abhijit and he said that he has not dwelt into the details of how to approach a case study. So we'll first briefly discuss how you're going to approach a case study. मतलब क्या करना चाहिए उसमें, और फिर एक केस स्टडी लेके लिखेंगे भी कुछ और डिस्कस भी उसको करेंगे बाद में. ओके? ये स्टेटमेंट है ना, एथिक्स पढ़ना है ना, तो इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है. एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने 2022 के पेपर में, सेक्शन ए में. दिस स्टेटमेंट इज बाय पॉटर स्टीवर्ट. ही वाज अ सुप्रीम कोर्ट जज इन यूएस, और इन्होंने बहुत एथिकल डिसीजंस दिए हैं. तो एथिक्स में एक बड़ा नाम है स्टीवर्ट. तो उनका स्टेटमेंट था, एथिक्स इज, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू, लीगल राइट, व्हाट यू हैव अ राइट टू डू, एंड व्हाट इज राइट टू डू. ऐसे में भी लिख सकते हो, फिलोसॉफिकल ऐसे जो आ रहे हैं आपको, उसमें ये कोट कर सकते हो आप. तो व्हाट इज पॉटर स्टीवर्ट सेइंग? दैट देयर इज अ डिफरेंस. एथिक्स का क्या मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजें जो हमें पता होती है. एक है आई हैव द राइट टू डू, मुझे ये करने का अधिकार है, मैं ये कर सकता हूं, लीगली कर सकता हूं, राइट?
बट व्हाट इज राइट टू डू? मान के चलो डिलीमा आ गया आपके पास, हाँ, यूपी बिहार जैसे किसी स्टेट में आप पुलिस पर्सन हो, और जहां एनकाउंटर्स बहुत कॉमन चीज है। तो एनकाउंटर एक बहुत बड़ा एथिकल एक डिबेट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा है। तो और हमेशा जब जब एनकाउंटर होते हैं ना, तो यही कॉमन एग्जांपल होता है कि वो भाग रहा था, ये उसने अटैक कर दिया हम पे। बिल्कुल मूवी की तरह एक्सप्लेनेशन होता है। दो ही वजह होती है कि एनकाउंटर होता है। तो सी व्हेन आई से I have a right to do, because as a police person I'm legally entitled to maybe even shoot a criminal. But then I should ask कि legally permitted है, but is it a right thing to do? Because I'm not the one who gives life. Can I take a life? मेडिकल फील्ड में भी बहुत अबॉर्शन के बारे में केसेस आते हैं, केस स्टडी आता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत एथनोशिया पे केस स्टडीज बीच में बहुत आ रही थी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि हम लाइफ नहीं दे सकते तो क्या हम ले सकते हैं वाला सेम। तो मान के चलो इथनोशिया लीगल हो गया, अबॉर्शन लीगल हो गया, इनकाउंटर्स लीगल हो गए। तो इफ आई एम अ रिस्पॉन्सिबल legal person in that position, I have a right to do that. But then ethics is what? Ethics is it a right thing to do? क्योंकि ये डिसीजन लेना आसान नहीं होता है, right? We had a guest lecture on the MPSC batches, and a senior PI was addressing the students. And so in the question answer session, one of the students, he asked him that have you ever done any encounter? तो हमें कैसा लगता है ना, बहुत मूवीज देख के ये बहुत आसान लगता है। तो उन्होंने उस पर एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि मेरे पास गन है, मुझे चलाने का राइट भी है, लीगल राइट है, चला भी देता हूं तो कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं लेगा मुझ पे, लेकिन ये चलाना आसान नहीं है। क्यों? किसी की लाइफ लेना इज नॉट माई राइट, नॉट माई मॉरल राइट। इट इज नॉट इन माई मॉरल प्रिंसिपल्स कि मैं किसी को मार दूं। उसको रिफॉर्म भी तो किया जा सकता है ना। आपको यूपीएससी में आगे जाके ये भी पढ़ोगे आप, क्लास में नहीं पढ़ोगे ऑफ कोर्स, आपको खुद पढ़ना होगा कि हैंगिंग अंटिल डेथ वाला जो पनिशमेंट होता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। इस पे डिबेट हो सकता है, इस पे एसेज लिखे जा सकते हैं। तो दुनिया भर में आपको पता होंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज हु हैव बैंड हैंगिंग। कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब दे हैव बैंड हैंगिंग, कि किसी को फांसी नहीं देंगे। इंडिया में देते हैं कभी कभी, रेयरली लेकिन देते हैं। मतलब वो डिबेट आया था कि क्या ये हमें करना चाहिए, तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको कि यह करना चाहिए क्या। तो अगर कोई हार्डन क्रिमिनल है मान के चलो, तो उसको फांसी देने से पहले एक हमारे पास ऑप्शन है कि क्या इसको रिफॉर्म किया जा सकता है ना। वैसे तो लॉज है, तो चोरी बंद होगी, क्राइम बंद हो गया इंडिया में। कितने सारे लोगों को पकड़ के, जगह नहीं है प्रिजन्स में इंडिया के। अगर आप एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ोगे तो इंडियन प्रिजन्स ओवर क्राउडेड है, जगह नहीं है लोगों को रखने के लिए। तो इतने सारे लोग अंदर है, फिर बाहर आते हैं, फिर कुछ तो करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन में आता है कि क्या उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। आप रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करते हो, बट व्हाट अबाउट पीपल हु कैन नॉट बी रिफॉर्म? उनमें रिफॉर्म हो ही नहीं रहा है, तो उनको फांसी देनी चाहिए। तो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली है, अलाउड है कि दे सकते हो, लेकिन फिर एथिकली सोचो कि क्या देना, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु गिव हिम लाइफ। शुड आई एंड हिज लाइफ? राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी पर्टिनेंट पॉटर स्टीवर्ट को, जब इन्होंने कहा था कि व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट राइट यू हैव एंड व्हाट इज राइट थिंग टू डू. अधिकार असणं, राईट, आणि बरोबर असणं, ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि हे वेन यू ऍक्ट एज अन ऑफिसर ऑन द फील्ड, every now and then you're going to come across this. Every step you're going to come across this. Right?
सो व्हाट एक्चुअली इज द एथिक्स पेपर, ये पहले समझो कि आपको जब आप लिख रहे हो केस स्टडी को, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट होता है उसका आपको पूछ लिया, आप क्या करोगे, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हो या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, और स्ट्रीट्स पे बहुत सारा इंक्रोचमेंट हुआ है, फुटपाथ पे लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, पेडेस्ट्रियन कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो एथिकल डिलेमा आ जाता है, यार लॉ ने तो कहा है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन आप जाओगे सोचोगे यार गरीब लोग हैं, कुछ बना के ठेला वहां बेच रहे हैं, उनकी आमदनी उसी से आ रही है, उनका घर उसी से चल रहा है, तो क्या किया जाए? तो एथिकल डिलेमा होता है एकदम कि लॉ क्या कहता है, इन लोगों का क्या होगा, फिर अगर मैंने निकाल भी दिया इंक्रोचमेंट तो बाद में ये लोग कहां जाएंगे, फिर वापस कुछ दिनों बाद वहीं आएंगे, तो मैं परमानेंट सोल्यूशन तो निकाल नहीं रहा हूं। तो किसी भी ऑफिसर को, मतलब ये तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया, लेकिन एवरी स्टेप एज एन ऑफिसर यू आर गोइंग टू बी फेस्ड विद लॉट ऑफ ethical and moral dilemmas which legally might seem right but ethically morally may seem to be incorrect in doing so. तो बेसिकली आप जब केस स्टडीज लिख रहे हो ना, तो यही सोच के आपको लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ, केस स्टडी में ऑफ कोर्स आपको लीगैलिटी देखनी होती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सब देखना होता है ना, क्योंकि आप सोल्यूशन दे रहे हो तो इमोशंस पे भी दे नहीं सकते हो। केस स्टडीज में हम सबसे गलत गलत क्या करते हैं, देयर इज अ वन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्सट्रीमली टुवर्ड्स द लॉ, कि लॉ में ये कहा है तो ऐसे ही होना चाहिए, एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आउटराइटली इमोशनल, लॉ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये सोचते ही नहीं है। नहीं नहीं यार गरीब है, उनको कैसे निकालेंगे, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मर जाएंगे, तो उनको रहने दो यहाँ पे। ये एथिकल बहुत हो गया, एथिकल कंडक्ट हो गया। आपको बीच में से सोचना है कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकता है। केस स्टडी वही सही होती है जो इंप्लीमेंट हो सकती है, सोल्यूशन आपका वही सही होता है जो इंप्लीमेंट हो सकता है। आप इमेजिनरी कोई भी लिख रहे हो सोल्यूशन को, चलेगा नहीं केस स्टडी में। व्हाट इज द एग्जामिनर लुकिंग फॉर? that when you come up with different solutions, when you come up with different options, is that practically implementable? आपने सॉल्यूशन दे दिया लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, योर केस स्टडी इज इनकम्प्लीट। सो द चैलेंज फॉर अस इज टू बी बैलेंस्ड, न्यूट्रल, इन बिटवीन लॉ एंड इन बिटवीन मॉरल्स, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, व्हाटएवर। और ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली इसको लेता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता, इसलिए एथिक्स का स्कोर आपका लो है। You'll have to understand the balance between what is right, and what right you have to do. जिसको ये समझ में आएगा ना, उसकी केस स्टडी बैलेंस्ड होगी, उसको मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर वही आंसर जीएस वाला फंडा हो गया कि आपने लिख दिए 250 वर्ड्स का मतलब नहीं कि आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। आप क्या लिख रहे हो ये भी मैटर करता है बहुत सारा केस स्टडीज में। तो क्या करना चाहिए, अब इसको मैं शेयर करूंगा, इनको आप पढ़ सकते हो कि लीगलिटी मॉरलिटी जो होता है। जैसे मैंने कहा कि लीगल है लेकिन क्या मॉरल है, या मॉरल है लेकिन क्या लीगल है, ये हमेशा ऑफिसर को सोचना पड़ता है। और उसको दोनों तरफ, मतलब एक कोई ऑफिसर होता है ना बहुत एकदम नियमावर बोट ठेवणारा म्हणतो आपण, की नाही बघ नियमात असं सांगितलंय, कागदोपत्री असं सांगितलंय। म्हणजे समजा पीडीएस आहे, तुम्हाला सिच्युएशन दिली पीडीएस गावामध्ये, and there's a person who has no ration card. Now it is his question of survival, livelihood, that if he does not have a ration card and he'll not be able to get the free food grains that are provided by the government. क्यों नहीं है उसके पास? तो उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं। आप हो ऑफिसर, वो आता है आपके पास, अनपढ़ है, उसकी मतलब उसके पास कोई पेपर होगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको पीडीएस का तो देना है फूड ग्रेन्स, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। एक ऑफिसर होता है, उसके पास जाएगा ये बंदा तो बोलेगा नहीं आपको नहीं मिल सकता, क्यों, ये देखो ये लिस्ट लगा हुआ है, इसमें से आपको सब कुछ चाहिए।
आप कहीं जाते हो ना, क्लर्क के पास पहले जाना पड़ता है, किसी ऑफिस में जाओगे या लोअर रैंकिंग किसी के पास जाना पड़ता है, वो दिमाग नहीं लगाता है। वो क्या बोलता है, ये चेक करे, ये मिसिंग है, ये पढ़ लो, सब लेके आओ, फिर काम होगा आपका। क्या वो एथिक्स का एग्जाम दे रहे हैं? ग्रुप बी वाला, ग्रुप सी वाला एथिक्स का एग्जाम देता है क्या? क्यों? उस लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं, उसने सोचना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या लीगल है, इलीगल है। आप जब ऊपर पोजीशंस में जाओगे तब ऐसे सिचुएशंस बहुत आएंगे। तो अगर कोई एसडीएम है, डीएम है, उसके पास ये केस जाता है, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ तो करेगा, गोइंग आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ विदाउट वायलेटिंग द लॉ। व्हाट एम आई सेइंग? गोइंग आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ विदाउट वायलेटिंग द लॉ। कायदा मोडायत नाहीये तो, पण कायद्याच्या पलीकडे जाऊन मदत केली जाऊ शकते, because he is not going to have documents. So that's the debate between legality and morality. मग तुम्हाला मॉरल गोष्ट करताना अशी करायची, ती लिगल पण असली पाहिजे. इट इज नॉट दॅट यू डू समथिंग मॉरल बट इट इज गोइंग टू बी इलिगल. इट विल नॉट स्टँड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, right? And everything you're going to stick to the law, he's going to die because he'll never have a document in his life. So that is what you'll have to understand. And who is a good officer is someone who can find a way out in between these two. So in all the ethical dilemmas, I would say this is a practice. Newspaper, you read newspapers, you come across different case laws in which you find a lot of ethical dilemmas. You just think of it. चंदा कोचर माहिती आहेत, आईसीआईसीआई वाले? नहीं सुना नहीं है नाम आपने? पेपर वाला इकोनॉमिक्स पेज पढ़ते हो कभी? इनसाइडर ट्रेडिंग नाम सुना है कभी? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? नहीं? तो यहीं से शुरुआत है आपकी एथिक्स की. If you do not know real life ethical dilemmas, how are you going to quote examples? कहां से बुक में से लोगे? बुक में दिए होते ये एग्जाम्पल? नहीं दिए होते. You will have to have lot of real life examples to write in your case studies, to write in your section A answers. तो इसके पीछे लोगों पहले, right? Why did I say you observe around you? Because I want you to find lot of ethical dilemmas. वो सोसाइटल हो या गवर्नेंस के हो, पर्सनल लाइफ के हो, everywhere you're going to find different examples of such dilemmas because you're going to write them in the section A. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किती वेळा इकॉनॉमीमध्ये केस लॉज येतात. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, that I'm in a position and my relative comes and files for a tender and I'm the one who's going to ratify it. That is conflict of interest. And you go into government and you see जो बड़े बड़े टेंडर होते हैं ऑफिसर के, इसको उसको घर वाले इसको दे दिया, रोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है. इसलिए तो एथिक्स का पेपर दिया है, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड अ वे आउट बिटवीन दिस. You should not be illegal also, you should not be immoral also. You should not only be legal and be not moral. You should not only be moral and not be legal. डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन लिखा ही नहीं जा सकता ये भी नहीं है. कब लिखा जा सकता है? जब आप ऐसे बहुत सारे एथिकल डिलेमास पढ़ोगे तब लिखा जा सकता है, अदरवाइज नो. सो टुडे onwards you start looking for different ethical dilemmas in day-to-day life. Okay. Now हे जे स्टीवर्ट्स आहे ते नंतर पडा. हाऊ टू अप्रोच अ केस स्टडी, that's what we are going to discuss first. How to approach a case study. There are some steps that you have to follow. These parts you're going to read. Okay, what are the dilemmas that an officer faces? Actually, you'll regularly come across dilemmas where two or more values come into conflict. First, you'll have to know values. इसलिए section A important है. You know different values, then you know how to address a case study. For example, honesty versus compassion.
मतलब आपने देखा एक गरीब बंदा है, कुछ चुरा के भाग रहा है, और आपसे आके पूछा जाए कि कहाँ गया चोर, आप बताओगे कि नहीं बताओगे? वाला जो है कंपैशन भी, बेचारा गरीब है, उसको चोरी करना ही था, खाने के लिए कुछ नहीं था उसके पास, इसलिए उसने कुछ उठाया शॉप से और भाग रहा है। तो ये सिचुएशन है, आर यू गोइंग टू बी ऑनेस्ट और आर यू गोइंग टू बी कंपैशनेट, राइट? देन लॉ वर्सेस पब्लिक वेलफेयर। लॉ में ऐसी कुछ चीजें होती है कि नहीं करनी है, लेकिन उससे वो करने से पब्लिक वेलफेयर हो सकता है, ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, राइट? दिस प्रिंसिपल यू ऑलवेज अप्लाई इन एथिक्स। केस स्टडी लिखने में हमेशा जब डिसीजन ले रहे हो कोई, तो यू शुड थिंक ऑफ द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, कि is this greater good of the society served in my decision? Okay, so that is one you come across. Then rules versus empathy, ये तो सबसे कॉमन होता है कि रूल कुछ और कह रहा है लेकिन एम्पैथेटिक बनना, ये रेशन कार्ड वाला जो मैंने एग्जांपल दिया आपको। So are you going to be empathetic to a situation or are you going to follow the law is one situation. Public interest versus individual right, ये भी सिचुएशन बहुत बार आती है इंडिया में, right? There's a famous person, I forget his name, his statement that ये रास्ते पे ऐसे स्टिक घुमाते जा रहा होता है एक बंदा, राइट? और एक फिलोसोफर है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं कभी आपको बताऊंगा। तो ये चल रहा होता है रोड से और ये मिस कर जाता है स्टिक, उसको लग जाती अगर वो नहीं हटता तो उसको क्वेश्चन करता है, यार क्या पागल है क्या, तो ऐसे स्टिक घुमा के क्यों जा रहा है रोड से? तो बोलता है क्यों, लॉ ने कहीं बैन किया है क्या स्टिक घुमाना ऐसे? राइट, इट इज माई राइट, आई कैन मूव द स्टिक अराउंड। सो ही सेज योर राइट एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, है ना? तो घुमा सकता है भाई, लेकिन अगर मेरे नाक में लग गया तो वो तेरा राइट नहीं है। सो योर राइट एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आई टेल यू whose statement this is later. So this is what you come across, public interest versus individual rights. So these are different dilemmas that you're going to come across. You are going to find example. Remember, your preparation for ethics is nothing but finding out different examples, ethical dilemmas you come across. Okay, then क्या फॉलो करना चाहिए या कौन से रूल्स होने चाहिए इसमें? पहला है कि केस स्टडी लिखोगे आप तो क्या याद रखोगे पहले? These are 5 points that we're going to discuss later. This is the first one. Identify the ethical issues clearly first. Your case study will be complete only if you can identify the ethical problems that are given in the case study. मार्क्स नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमें एथिकल डिलेमा क्या है केस स्टडी में वो समझ में नहीं आता, या अगर मल्टीपल हो तो हम एक या दो को ही फोकस करते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं, राइट? So what you're going to do is conflict of different values that we have seen earlier. So you're going to find out all such conflict of values that are given in the case study. Brainstorm करो। उससे अच्छा क्या है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए वैल्यूज की, और कौन से वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं उनकी रेडीमेड लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। क्यों? You're not going to sit and think in the exam environment कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। रेडीमेड लिस्ट जब आपके पास होगी, आप रोज उसको देख रहे हो, तो आपको 10-15 एथिकल डिलेमास पहले से दिमाग में है, आपको बस देखना है कि ये वाला है क्या, ये वाला है क्या उसमें केस स्टडी में। So the first and the most important thing is you'll have to identify the ethical dilemmas that are given in the case study. Then find out the stakeholders. We just discussed why finding out stakeholders is very important, because if you miss out a stakeholder, you're not doing justice, that it is not a solution, or your solution to one might create problems to some other stakeholder whom you have not considered in giving this solution, राइट? मैं फुटपाथ पे से इंक्रोचमेंट नहीं निकालूंगा, तो दूसरा एक स्टेक होल्डर है पेडेस्ट्रियन, उसके इंटरेस्ट का मैं सोच नहीं रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं ये गरीब है उसको रहना चाहिए यहाँ पे, तो एक दूसरा स्टेक होल्डर है जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। तो केस स्टडी में स्टेक होल्डर्स पता होने चाहिए आपको कौन कौन है, और
अच्छा केस स्टडी कौन सा होता है, सोल्यूशन अच्छा कौन सा होता है, जो सारे स्टेक होल्डर्स के स्टेक्स को एड्रेस करे, वो सही सोल्यूशन होता है। आप किसी स्टेक होल्डर को छोड़ नहीं सकते हो, otherwise it is not complete. Okay, then always look for rule of law. जैसे मैंने कहा कि इम्प्रैक्टिकल आप कुछ नहीं कह सकते हो, you can't be impractical in giving solutions in the case studies. You'll have to stick to the law, you'll have to stick to the constitution, legal framework within the country, जो भी आप केस स्टडी में दिया होगा वो लीगल फ्रेमवर्क आपको याद रखना होगा जब लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हो। सो दिस व्हाट दिस डज इज इट शोज द एग्जामिनर दैट यू हैव अ क्लियर थॉट अबाउट व्हाट इज द सिचुएशन, एंड द ऑफिसर हैज टू बी वेरी वेरी on his toes on the field and at the same time have lot of clarity. कल आपने देखा इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुए, लोकल बॉडी इलेक्शंस, आप रिटर्निंग ऑफिसर हो तो कितना एथिकल डिलेमा है, रोज फेस करना आसान नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको कुछ तो डिसाइड करना है, राइट? या ये जो केस एक महाराष्ट्र में हुआ जो अनअपोज्ड हुआ इलेक्शन पूरा, और एक नगर अध्यक्षाच्या याच्यासाठी जे सगळं ड्रामा चालला होता, द रिटर्निंग ऑफिसर, इमेजिन उसके लिए कितना मुश्किल है ये डिसाइड करना, पूरी उसको देख रहा है पूरा स्टेट कि क्या होगा यहाँ पे, तो आपको डिसाइड करना है द राइट पाथ फॉरवर्ड. So when you're writing the solution to the case study, the first indicator to the examiner that you're going to give is that you have a clear thought. मुझे ये भाई ये situation जो है ना क्लियर हो गया है, मुझे स्टेक होल्डर्स पता है, मुझे एथिकल डिलेमास पता है, मुझे क्या करना है ये सब क्लियर हो गया, अब मैं लिखना शुरू कर सकता हूं. तो दूसरा आएगा, what is going to be the structure of your case study. I don't want you to miss the structure completely. Let's not mess with the basic things. We'll have to first get the basics right. So like I discussed, this is the structure that we follow normally in all the case studies. So first you write the introduction. म्हणजे इकडे मी लिहितो बाजूला. You'll have to write the introduction also. Okay. Then इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो, फैक्ट्स ऑफ द केस, कि ये केस क्या है, ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द केस आप इंट्रो में लिख सकते हो. देन की स्टेक होल्डर्स, दूसरा की स्टेक होल्डर्स लिखना बहुत जरूरी है. एथिकल डिलेमास कौन कौन से इन्वॉल्व है. बेसिकली आप यूपीएससी के केस स्टडीज देखोगे तो आपको क्वेश्चन पूछा उन्होंने है, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट इज द मोस्ट पर्टिनेंट ऑप्शन, ये ऑलरेडी उन्होंने पूछा है, तो ये आपका कंसर्न ही नहीं है. आप अलग से क्या करोगे, आप एक इंट्रो लिखोगे और स्टेक होल्डर्स देखोगे जो पूछा नहीं है क्वेश्चंस में. अदरवाइज द क्वेश्चंस आर ऑल आस्क्ड कि एथिकल डिलेमास क्या है, पूछा जाता है, व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल पूछा जाता है केस स्टडी में, एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच ऑप्शन पूछा भी नहीं गया हो तो भी आपको, आप जब ऑप्शन, जितने आपके पास 5 ऑप्शन है कि क्या किया जा सकता है, you are going to write the merits and demerits of all the options. फुटपाथ पे से मैंने इंक्रोचमेंट निकाल दिया तो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस हो जाएगा, राइट? पेडेस्ट्रियन का इशू है, पेडेस्ट्रियन को चलने को मिलेगा, मेरिट है. डीमेरिट क्या है, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा. तो जो भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं कि 5 ऑप्शन से मान के चलो, तो उनका एक मेरिट कम से कम और एक डीमेरिट कम से कम आपको पता होना चाहिए. सो नॉर्मली दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ योर केस स्टडीज हैज टू बी. डोंट वेस्ट योर टाइम इन रनिंग अराउंड द प्लेसेस फाइंडिंग अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ द केस स्टडी. कुछ नहीं होता है इससे अलग. दुनिया भर का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हम लोग. हाँ, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, अब नया ब्रीड आ गया, चैट जीपीटी पे देख लेंगे. भाई चैट जीपीटी तो मशीन है ना, तो उसको आप क्या पूछोगे, तो वो वाला केस स्टडी लिखोगे तो एग्जामिनर तो यूं समझ जाएगा, राइट? उसको आप ह्यूमनाइज कैसे बना सकते हो, जब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे तब. ओके, सो नॉर्मली दिस इज हाउ योर केस स्टडी विल हैव टू बी.
And of course, at the end, you write conclusion also. Brief again. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ब्रीफ लिखना है. बाकी पूछा जाएगा क्वेश्चन में सीधा उन क्वेश्चंस को आपको एड्रेस करना है. ओके. नेक्स्ट व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट इज, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो फाइनल डिसीजन लोगे ना केस स्टडी में, वो कैसा होना चाहिए. बाकी ऑप्शंस के आप सिर्फ मेरिट डिमेरिट्स लिख रहे हो, but the final option that you choose, that this is the way I'll go forward, then you'll have to give justification. Justify why you're choosing that step, that option. And in giving justification, what you'll have to think of, you'll have to think of ethics, law, public interest, and all the values that come in ethics. उस हिसाब से आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने ये फाइनल डिसीजन क्यों लिया. Okay, then balance values like a real administrator, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. साउथ का मूवी देख के एथिक्स का पेपर मत लिखना, सबसे डेंजर है. मूवीज को देख के हम एथिक्स का पेपर लिख नहीं सकते. वो मूवी का पुलिस ऑफिसर कुछ भी कर रहा है, पुलिस वाला गुंडा मूवी है, तब कोई देख के जाएगा तो क्या लॉ लिखेगा उसमें, राइट. सो योर एथिकल अंडरस्टैंडिंग शुड नॉट कम फ्रॉम द मूवीज. दिस इज अगेन very serious. I found students writing names of the movies in the case study. So movies are not a source of your ethical understanding. Okay. So you'll have what you're going to think of. You're going to think of a real administrator. मैं जो बोल रहा हूँ हमेशा, you act like an officer, you behave, you think like an officer. Because case studies will be appropriate only if you write them like a real administrator. Real administrator को काम करने में बहुत दिक्कत होती है. याद रखना, आपके पास चाहे जितनी पावर हो, उस पावर पे लिमिटेशंस भी उतनी होती है. तो ये मत सोचो कि मुझे केस स्टडी में कहा है कि आप डीएम हो तो आप ये सिचुएशन में क्या करोगे. डीएम भगवान नहीं है. डीएम को भी कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं. नहीं तो मैं डीएम हूं लिखने शुरू कर देते, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, राइट. यू कैन नॉट बी इम्प्रैक्टिकल इन डूइंग सो. So you'll have to think like a real administrator within the framework of all the rights that you have. So use a combination of what? First is rule of law. सबसे बेसिक है. केस स्टडी में कभी भी रूल के खिलाफ कुछ मत लिखो. You'll have to first look at the options whether it fits in the rule of law. मॉरल करना इसका मतलब ये नहीं कि इलीगल कर सकते हो आप कुछ. वो अगर चीज मॉरल करनी हो लेकिन वो लीगल भी होनी चाहिए, राइट. तो मैंने जो कहा लीगलिटी वर्सेस मॉरलिटी का बीच वाला बैलेंस आपको लेके आना है. सो रूल ऑफ लॉ इज गोइंग टू बी देयर इन योर केस स्टडीज एट एनी कॉस्ट. सो फर्स्ट रूल ऑफ लॉ. सेकंड कंपैशन एंड ह्यूमन डिग्निटी. ह्यूमन डिग्निटी के बारे में हम सोचते नहीं कभी. कभी कभी आपने देखा होगा when there are foreign visits to India, some high profile conferences happening in India, all the beggars or street people, they are packed into and dropped off in some other place. है ना. यूपी में एक बहुत ये हुआ था, डिस्कशन में आया था कि कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. सारे भिखारी पकड़ लिए ताजमहल के आसपास जितने भी होते हैं और उनको कहीं छोड़ के आए या पकड़ के रखे कुछ दिनों के लिए. ये करने में क्या आप ह्यूमन डिग्निटी की सोच रहे हो उसके बारे में? आप जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं ना तो ह्यूमन को डिग्रेड नहीं कर सकते. सिंपल एग्जांपल बताता हूं. आप एक नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, हा? और कुछ तो हो रहा था सामने, आप दूर से देख रहे हो, पुलिस वाला आ गया, आपको थप्पड़ लगा दिया एक. उसने सोचा नहीं, कुछ नहीं, आप यू आर नॉट इवन द इन्वॉल्व्ड, यू आर नॉट इवन अ स्टेक होल्डर इन व्हाट इज गोइंग ऑन. उसने आके आपको मार दिया. इंडिया में इस पे केसेस चली है सुप्रीम कोर्ट में कि तूने मारा कैसे मुझे.
यू आर डिग्रेडिंग माई डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, आई एम फीलिंग लो ऑफ माई सेल्फ, हाउ कैन यू कम एंड हिट मी? तो ये आसान नहीं होता है। तो आप जब डिसीजन ले रहे हो तो उस डिसीजन में क्या होना चाहिए? उस डिसीजन में ह्यूमन डिग्निटी के बारे में सोचना चाहिए आपने, कंपैशनेट होना चाहिए आपने। लीगली कंपैशनेट हो सकता है आदमी, कंपैशनेट हो लेकिन लीगल नहीं हो, ये केस स्टडी में नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? कंपैशनेट हो सकते हो लेकिन लीगली, विद इन लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो सारे जो वैल्यूज है उनको कहा, किस फ्रेमवर्क में बिठाना है? लीगल फ्रेमवर्क में। यू विल हैव टू बी कंपैशनेट एज एन ऑफिसर, बट यू कैन नॉट bypass the law. You will have to keep the human dignity intact, but you cannot bypass the law. That's the core here. Then प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी एज ए ऑफिसर जो करना है, करना ही पड़ेगा। मान के चलो फुटपाथ ये इंक्रोचमेंट के लिए नहीं बना है तो उसको निकालना ही होगा, ये मेरा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, निकालने के बाद जो दिक्कत होगी उसको मैं सोचूंगा आगे, लेकिन दैट इज माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे निकालना ही होगा उसको। देन लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट। आप जब कोई एक्शन ले रहे होंगे ना, एग्जामिनर को क्या देखना है? आर यू अ विजनरी? If you show the examiner that you have a vision, long term vision, it is going to hit the chord. You're going to score more. So one basic understanding in the explanation of your case studies has to be that you are a visionary. आप दूर की सोच रहे हो कि मैं अगर इनको रोड से निकाल दूंगा, ये कुछ महीने बाद फिर से आके यहां बैठ जाएंगे हॉकर्स जो है। आई थिंक कल परसों एफसी रोड पे कुछ एक्शन हुआ, खुला खुला लग रहा है रोड एकदम। तो आपको क्या लगता है वो आएंगे? नहीं, फिर से आएंगे। और ये क्या पहली एक्शन है इस रोड पे? नहीं ना, बहुत बार ये एक्शन हुआ है। व्हाट डू यू अचीव आफ्टर द एक्शन? नथिंग। इट इज बिजनेस एज यूजुअल आफ्टर फ्यू डेज। तो अगर कोई एक ढंग का ऑफिसर आएगा, और ऑफिसर को मतलब अभी ढंग के आते ऑफिस, लेकिन उसको टाइम कहाँ है? मतलब एफसी रोड पे इंक्रोचमेंट सोचने का टाइम कहाँ है उसके पास? सिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना। अब जैसे मैंने आते आते गाड़ी में सुना कि सिंहगढ़ रोड को अभी 66 प्लेसेस पे वो काटने वाले हाईवे को, फिर से जो फ्लाईओवर बनाया। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कॉर्पोरेशन क्या करता है, ये फुटपाथ ले करेंगे, बाद में पता चलता है यार अच्छा नहीं लग रहा है, फिर निकाल लेंगे, फिर लगा देंगे, फिर निकाल लेंगे। रोड बनाएंगे, समझेगा नीचे से पाइप रह गया, केबल रह गया, फिर रास्ते को निकालेंगे। ये चल रहा है कॉर्पोरेशन में। तो सिंहगढ़ रोड पे मेट्रो बन रहा है, तो जो ब्रिज अभी अभी बना है उसको 66 प्लेसेस पे कट करेंगे ताकि मेट्रो का पिलर वहां बने। तो ऑफिसर के पीछे ये सब लग गया। उसको कहां पड़ी है कि एफसी रोड पे ये पेडेस्ट्रियंस का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, राइट? बट व्हेन यू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, एटलीस्ट इन योर केस स्टडीज, ऑफिसर होने के बाद देखेंगे क्या करना है, केस स्टडीज में जब लिखोगे तब आपकी सोच लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए कि अगर मैं इंक्रोचमेंट निकाल रहा हूं यहां से एफसी रोड से, तो क्या किया जा सकता है कि दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन, बिकॉज आई विल हैव टू थिंक फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन to the problem, which is legal, which is long lasting, which is moral also, and which also cares for their economic outcome. तो आप जब लिख रहे हो केस स्टडी में तो हमेशा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में सोचो, लिखो। दैट इज वन वे ऑफ इंप्रेसिंग द एग्जामिनर। ओके, देन बैलेंस रीजनिंग। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि वो आपको स्कोर मैक्सिमाइज करने की हेल्प करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपको 5 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, ये डिफरेंस ह्यूज है। किसको मिलते हैं? जो बैलेंस कर सकता है उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो बैलेंस करना सेकंड पॉइंट बहुत जरूरी है। चौथा जो है, जस्टिफाई योर डिसीजंस। डिसीजन ले लिया, क्यों लिया पता नहीं, ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा। When you choose a particular line of option,
you'll have to justify to the examiner why you're doing a particular thing in detailed. सारे मतलब जो केस स्टडी में आप लिखोगे कि ऑप्शंस मेरे पास ये 5 है, उसके मेरिट डिमेरिट ये है, उन 5 में से मैं चौथा वाला ऑप्शन जो है वो चूज करूंगा, उसको इंप्लीमेंट करूंगा। मुझे फिर से लिखना होगा डिटेल में कि व्हाई आई विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन। उसके डिमेरिट अगर होंगे तो मैं उसको नलिफाई कैसे करूंगा। If you're not doing with your option, you're not going to score marks. Many students, they just write the available options, their merits and demerits, and that's it. The case study is done. No. You're not going to get good marks for that. What you're going to do is, you will choose one line of action and justify why you're doing it. Right? So, कैसे justify करोगे? That also is a big issue. फिर फिल्म ही नहीं कर सकते। जस्टिफाई जब करोगे उसको तो कैसे करना होगा, कौन से पैरामीटर्स पे करना होगा? पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे करो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉ और ह्यूमन डिग्निटी की बात करो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन डिग्निटी गारंटी नहीं करता है हमें? फंडामेंटल राइट्स करते कि नहीं करते? तो आप लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन डिग्निटी को उसके ये करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इज वी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे फोकस ओनली ऑन वन पैरामीटर। केस स्टडी पढ़ते पढ़ते अगर उसको पता चला कि हाँ यहाँ एक लीगल पॉइंट है, वो लीगल को पकड़ के लिखेगा पूरा केस स्टडी, वो बाकी कुछ ऑप्शन सोच नहीं रहा है। When you are implementing a legal option, that might degrade someone's human dignity, but the constitution says that human dignity has to be preserved. Handcuff नहीं कर सकते पब्लिक में, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ना। तो ह्यूमन डिग्निटी को भी आपको बरकरार रखना है। तो ये कैसे कर सकते हो आप? तो आप जब सॉल्यूशंस दोगे, जस्टिफिकेशंस दोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लॉज, एक्ट्स आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं, राइट? जितने भी एक्ट्स है तो विमेन के होंगे, चाइल्ड राइट्स के होंगे, वीकर सेक्शंस के होंगे, ये सारे जो है अट्रॉसिटी वाले जैसे कुछ होते हैं, इनको आप मेंशन कर सकते हो आपके केस स्टडीज में। तो जीएस का थोड़ा नॉलेज आप आपके केस स्टडीज में भी ला सकते हो। फिर सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज है, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड से रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा जाता है एथिक्स के लिए, तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट क्या कर, ये हमें ये बताता है कि कौन सी वैल्यूज सिविल सर्विस की होनी चाहिए। जैसे इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी है, एम्पैथी है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। इन वैल्यूज को आप सॉल्यूशन में और एम्पलीफाई करो, इनको लाओ। ये अगर केस स्टडीज में ये टर्म्स आपके दिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको। बिकॉज लेट्स इमेजिन वी डू नॉट नो फॉर श्योर, बट द एग्जामिनर माइट बी हैविंग अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ एन आंसर। पता नहीं हमें होता है नहीं होता है, लेकिन अगर होगा उसके पास, तो एथिक्स के सिलेबस के जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वैल्यूज है, क्या वो नहीं होंगे आंसर में? होंगे ना। तो अगर हम हमारे आंसर में उनको मेंशन नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? So you will have to mention all the values, ethical values, in your case studies, in your justification, right? और ये कोट करने की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू एआरसी रिपोर्ट बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, मत करो कोट का। एआरसी रिपोर्ट अकेला है जो बताता है इंटीग्रिटी होनी चाहिए ऑफिसर में, नहीं। या सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल पढ़ोगे भी आप, सो लिख देते हैं कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल में ये कहा है, वो क्या है। देखो कोड भी नहीं करोगे फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये वैल्यूज लिखना जरूरी है, राइट? देन यू हैव मॉरल प्रिंसिपल्स ऑल्सो। कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स जो मतलब स्पेशली जो पीएसआर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले से पता होता है, जिनको नहीं है
उन्होंने पता करना है एटलीस्ट फॉर एथिक्स के लिए कुछ थिंकर्स, उनका थॉट, उनकी थियरी थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, लेमन की तरह, बहुत डीप में नहीं। क्योंकि कोई आपका कॉम्पिटिटर अगर वो लिख रहा है उसको, तो आपको लिखना ही होगा। क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी देखो, जो शक्ति दुबे फॉर एग्जांपल, शी जस्ट एन एग्जांपल, शी हैड पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल, उनका एथिक्स में स्कोर 143 है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पीएसआर वाला 143 स्कोर करता है, लेकिन उसको एज होता है। क्यों एज होता है? उसको बहुत सारी थियरीज पता है, थिंकर्स पता है, जिसको वो कोट करेगा आंसर में। तो जिनका नहीं है उनका कोई बड़ा लॉस नहीं है, आप भी कर सकते हो बहुत बेसिक बेसिक लेवल पे। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, राइट, वर्च्यू एथिक्स क्या होता है, कुछ भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है। कांत क्या बोला, या जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है उनका क्या कहना था, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो सीधा आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, राइट। ट्रस्टीशिप जो आइड था गांधी जी का, मान के चलो वो कोई लिख रहा है आंसर में, तो ये सारे छोटे छोटे थिंकर थियरीज वाला जो पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जस्टिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। देन ये क्यों करना है? बिकॉज इट शोज द एथिकल डेप्थ इन योर केस स्टडी। जस्टिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो डेप्थ दिखा रहा है आपके केस स्टडी में, आप कहां तक जाके सोच सकते हो। और लास्ट वाला पॉइंट जो है एग्जामिनर को आपको क्या दिखाना है? शो यूर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। दैट इज व्हाट द कंट्री वांट्स। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर शुड यू बी? You should be one coming up with solutions. You should not be the one creating the problems. You should be, one who solves the problems. And you have an opportunity in the case study wherein you can show to the examiner that yes, I can solve a particular problem and solve it for good, for long term. Okay? तो एग्जामिनर को क्या दिखाना है आपको? जैसे मैंने कहा फ्लॉन्ट इट इफ यू हैव इट वाला जो हम जीएस में यूज करते हैं, वैसे एथिक्स में क्या करना है आपको? आप एग्जामिनर को क्या दिखाओ कि प्रैक्टिकलिटी दिखाओ। ये मैंने जो कहा ना, फिल्मी वाले सॉल्यूशंस मत दो, ऐसे सॉल्यूशंस बताओ जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है। अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हो जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये ब्लंडर है, मान के चलो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि दैट आई कम अप विद द सॉल्यूशन, the most appropriate one, but we do not think whether it is legal, whether it is based on the law of the land, whether sometimes it is legal also, lawful also, and it is not implementable. क्या करोगे फिर? राइट? मतलब लीगल होना ये सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, वो लीगल भी होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मत दो। जैसे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं कि पुणे में बहुत ट्रैफिक हो रहा है, हम एयर बसेस करेंगे, ये करेंगे। कब करेंगे? मतलब इम्प्रैक्टिकल कुछ भी बोल देते हैं, इलेक्शन की सीजन में स्पेशली ऐसे ऐसे प्रॉमिस करेंगे, इम्प्रैक्टिकल है। तो ये अगर आप लिखोगे ट्रैफिक का इशू है इसलिए एक्सीडेंट हो रहा था, आप यूर एन ऑफिसर क्या करोगे? आप बोलोगे मैं एयर टैक्सेस बनाऊंगा, हवा से ट्रेन चलाऊंगा, ये कुछ भी लिख दोगे। प्रैक्टिकल है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। So what you're going to show the examiner that the solutions that you come up, the justification that you give is practical and which can be implemented immediately. Then next you have to be fair. किसी को अच्छा करने का सोचे और उससे किसी को बुरा हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, राइट? किसी का अच्छा करने जाओ, और बेसिकली फॉर एनी ऑफिसर इट इज व्हाई इट इज a very difficult job, that with every sign that every paper that he signs, there are two parties involved. एक को अच्छा लगने वाला है, एक को बुरा लगने वाला है। तो in doing so you'll have to be very fair, you'll have to be very neutral, क्योंकि मेरे एक साइन से कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है। अब जो बन रहा है वो सही होना चाहिए, राइट? जो सही है वो बिगड़ना नहीं चाहिए।
तो एज एन ऑफिसर व्हाट क्वालिटी इज इम्पैक्ट, क्योंकि केस स्टडी में क्या लिखा, यू आर दिस ऑफिसर, यू आर दैट ऑफिसर, यू आर मैनेजर, यू आर इन सम पोजिशन ऑफ पावर. सो व्हेन यू सिट इन पोजिशन ऑफ पावर यू हैव टू बी फेयर. आपका जात पात धर्म लाइक्स डिसलाइक्स ऑफिस के बाहर, you'll have to be fair, right? Show the examiner that you're being fair in your answers, and then you also have to be seen to be courageous to take decisions. At the cost of anger of the people, you're seen courageous to take decisions. लोगों को बुरा लग जाएगा. हेल्मेट सक्ती पुण्यामध्ये किती वर्षांपासून चालू आहे. लोक काय म्हणतील, मग सक्ती नकोच करायला. सी यू विल हॅव टू बी, वेदर पीपल लाईक इट और नॉट, इफ इट इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसायटी, यू टेक द डिसिजन. रुथलेसली इम्प्लिमेंट इट, अगेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ. द रुथलेसली म्हणल्यानंतर तुम्ही म्हणाल की धरून मारायचं आता कोणाला तरी, नाही घालत हेल्मेट, कसा नाही घालत बघतो. Whatever you do has to be within the framework of law. But these qualities of you have to be seen in the answer by the examiner, because this subjectivity, सबसे बड़ा डर क्या है पता है यूपीएससी में? सब्जेक्टिविटी का है कि मेरा पेपर किसके पास जाएगा, उसको क्या लगेगा मेरे पेपर के बारे में. तो बेसिक टिक बॉक्सेस है ना, उसको टिक करो कि एग्जामिनर को ये दिखाना था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला अब सबको करना है. ओके, so remember, everybody of you, you're going to go through these 5 points. Sensitivity towards citizen है, या ability to prevent future wrongdoing है. ये स्पेशली पनिशमेंट के बारे में आता है कि उसको क्या करोगे आप, रिफॉर्म ऐसा करो कि बाद में फिर से गलत ना करे, ऐसा कुछ फिर लॉन्ग टर्म क्या आप उसमें सोच रहे हो. सो एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मैंने बोल्ड किया है स्टेटमेंट, योर टोन शुड बी पॉजिटिव एंड सोशल ओरिएंटेड. Even in the answer writing sessions of GS, I had told you that your conclusion has to be solution oriented, futuristic, balanced. Never ever be negative in essay, in your ethics case studies, in your answer also. Be optimistic. नेगेटिव नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप चैलेंजेस भी नहीं हाईलाइट करोगे, करो, लेकिन पेसिमिस्ट होना और ऑप्टिमिस्ट होना, पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट का बहुत डिफरेंस है, राइट? उनको नेगेटिव माइंडसेट वाला ऑफिसर नहीं चाहिए. सो यू शुड ऑलवेज साउंड ऑप्टिमिस्टिक कि इसको ठीक किया जा सकता है. दैट टोन ऑफ ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस स्टडीज. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, देन now we'll go to the case studies. Now I want you to write. मैंने फर्स्ट क्लास है मेरा, इसलिए कुछ PYQ केस स्टडीज लिए हैं, तो इसको पहले ट्राई करेंगे और फिर अलग अलग तरह की केस स्टडीज हम लिखने की कोशिश करेंगे. बेसिकली व्हाई वी शुड नॉट ट्राई न्यू काइंड्स ऑफ केस स्टडीज, बिकॉज वी रियली डू नॉट अंडरस्टैंड इफ वी फुलफिल द पैरामीटर्स ऑफ यूपीएससी इवन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. I would recommend that your first priority of practice should be all the previous year case studies, चाहे वो जितनी पुरानी हो. लेकिन उससे क्या होता है ना कि आप यूपीएससी के केस स्टडीज के बहुत क्लोज रहते हो. हाँ, जब आपकी ये हो गए प्रैक्टिस करके, फिर आप सोच सकते हो बाहर की कोई केस स्टडी. लेकिन जब तक आपके पास है ऑप्शन, तो आप ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी ने जो पूछे हुए केस स्टडीज है उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उनके अराउंड सोचो, और फिर हम अलग अलग केस स्टडीज में जा सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ब्रीफली, आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना होगा, 5-10 मिनट का टाइम लेते हैं और उसको जिस तरह से स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया उस तरह का कुछ निकाल सकते हैं क्या केस स्टडी में, देखेंगे. क्या क्वेश्चन है? So this is UPSC 2024 question. The summer heat being exceptionally severe this year, the district has been facing severe water shortages. एक आपको आइडिया बताता हूँ, केस स्टडीज पे कौन से टॉपिक्स पे आती है केस स्टडी? उस साल के सबसे बड़े जो इश्यूज होते हैं ना, उसी पे आती है. ये यूपीएससी की अच्छी बात है.
वो आपको इमेजिनरी कुछ नहीं पूछ रहे, वो आपको रियल लाइफ सिचुएशन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्यों? मान के चलो इमेजिनरी प्रॉब्लम कुछ पूछ लिया तो उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन रियल लाइफ में पूछा जाए कुछ तो आपको पता है कितना डे जीरो सिचुएशन कितने जगह हुई इंडिया में। व्हाट इज डे जीरो? ऑल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द सिटी एंड्स अप, ड्राइज अप, दैट इज डे जीरो सिचुएशन। पानी नहीं है अभी। उसकी एक रीजन क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो बहुत आपको पता होगा बहुत जगह बोर नहीं मार सकते आप, पुणे में भी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। क्यों? ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। तो वो वाला सिचुएशन इंडिया में बहुत हद तक सही था। सो द केसेस विद द समर हीट बीइंग एक्सेप्शनली सीवियर दिस ईयर, द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन फेसिंग सीवियर वाटर शॉर्टेजेस। ये डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, मान के चलो मराठवाड़ा में कोई डिस्ट्रिक्ट है, राइट? The district collector has been mobilizing his subordinate officials to conserve the remaining water reserves for preventing the district from plunging into acute drinking water crisis. Okay? हमेशा याद रखना जब आप ऑफिसर हो और यहां पे कहा जाता है कि आप डीएम हो, तो लोग क्या कहते हैं, हम फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं ना, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई, असं लिहायचं असतं ते. इट गिव्स अ मोर पर्सनलाइज्ड टच. बट व्हाट वी डू इज वी फॉरगेट कि केस स्टडी में दिया है कि आप डीएम हो, और केस स्टडी में क्या लिखेंगे? मैं गांव में जाऊंगा और देखूंगा कि इसने बोरिंग किया है क्या? डीएम को पॉसिबल है गांव में जाना और देखना हर किसी के घर में? तो हम लिखते लिखते इतना इमोशनल हो जाते हैं। क्या भाई डीएम कभी गांव में भी नहीं जाता है? कौन सा डीएम बताओ मुझे आपके गांव में आया है? नहीं आता है। और डीएम का जो जितना टेन्योर रहता है ना, उस टेन्योर में वो डिस्ट्रिक्ट के 5, 10, 15, 20 गांव में जाता होगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल मत लिखो कि मैं गांव में जाऊंगा, मैं देखूंगा। आप नहीं जा सकते हो। क्यों? तो उसने लिखा है ना भाई, उसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उसको ये काम पे लगाएगा। तो ऑफिसर कैसा होना चाहिए? मैं खुद जाके एसी चला रहा हूं, मैं खुद जाके पानी भर रहा हूं। तो सबऑर्डिनेट से क्या कराओगे आप? उसको क्या एसी में बिठाओगे? उसका जो काम है उसको करने दो। तो केस स्टडी में मैं करूंगा, ये मी करणार आहे, मी करणार आहे, आपल्याला वाटतं की मी करणार आहे म्हणजे एक्झामिनर खुश. कुछ नहीं होना, इम्प्रैक्टिकल है सगळं, राइट? नेक्स्ट, सो अलोंग विद अवेयरनेस कैंपेन, उन्होंने खुद बताया कि अलोंग विद, अगर नहीं बताते तो आपको ये लिखना पड़ता कि आपके आंसर में कि अलोंग विद अवेयरनेस कैंपेन फॉर कंजर्विंग वाटर, स्ट्रिक्ट मेजर्स हैव बीन टेकन फॉर स्टॉपिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ये आदत लगा लेना कि आप जब केस पढ़ रहे हो तो उसको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करना शुरू कर दो. ये जब लिख रहे होते ना आप, सी रिमेंबर, I don't know in how many times in real life exam you have written case studies, but by the time we, कुछ केस स्टडीज इतनी बड़ी होती है, केस स्टडीज पढ़ना और उसमें से सब कुछ रिटेन करना इम्पॉसिबल है एग्जाम टाइम में. और टाइम का क्रंच है बहुत कुछ. तो हमेशा जब लिखना शुरू करते हो ना, हर पॉइंट को एक बार ऊपर देखना कि मैंने क्या क्या मार्क किया है और क्या वो चीजें एड्रेस हो रही है केस स्टडी में. क्योंकि 20-25 लाइन पढ़ के मैं सारा उसमें से क्रक्स रिटेन कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता. ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई और कर सकता है. So what is important here is you start marking out the important points that you find which will have to be addressed. So for example, awareness campaign है, over exploitation of groundwater है, vigilance teams है. तो this is what I want to say कि डीएम गांव में नहीं जाएगा, वो vigilance team बनाएगा जो जाके देखेंगे गांव में. Okay, so vigilance teams have been deployed to tour the villages and find the farmers who are drawing water from deep borewells or from the river reservoirs for irrigation. The farmers are agitated. तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. ये स्टेक होल्डर हो गया मेरा फार्मर, है ना. फार्मर को गुस्सा आ रहा है कि पानी भी नहीं निकालने दे रहे, और डीएम को ये राइट होता है. जब जब ड्रॉट सिचुएशन होती है तो डीएम रिजर्व कर सकता है पानी पीने के लिए. वो खेती के लिए भी नहीं देगा, किसी के लिए नहीं देगा, सिर्फ पीने के लिए होता है, पहला प्रायोरिटी. Okay, so the farmers are agitated by such action. A delegation of farmer meets the district collector with their issues and complains that while they are not being allowed to irrigate their crops, big industries
located near the river are drawing huge water through deep borewells or for their industrial processes. Farmers भी हो गया, industries भी हो गया मेरा. The farmers are alleging that their administration is anti-farmer and corrupt. आता बघा, हे आणखी माझ्यासाठी महत्वाचं झालं. ऍडमिनिस्ट्रेशन का परसेप्शन लोगों में बहुत इंपॉर्टंट होता है. कोर्टाची आणि पोलीस स्टेशनची पायरी चढायची नाही, ही आपल्यामध्ये झालेली परसेप्शन आहे. दिस इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिगेस्ट फेल्यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो कोई वेल थॉट आईपीएस ऑफिसर होगा ना, वो पहले पुलिस स्टेशन को वेलकमिंग बनाएगा. परसेप्शन को पहले ठीक करना होगा की अगर आपको बताया जाए की पोलीस स्टेशनची पायरीच नाही चढायची, मग आपलं इनजस्टिस झाल्यानंतर काय करायचं? इन्व्हाइटिंग वाचले पाहिजे ना पोलीस स्टेशन. दे शुड नॉट बी स्केरी. सो हियर ऑल्सो द परसेप्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन. So the farmers are thinking that their administration is anti-farmer and correct, being bribed by the industries. माझ्यासाठी महत्वाचं ऍड्रेस करायला केस स्टडी मध्ये, the district needs to placate the farmer, DM, sorry, as they are threatening to go on a prolonged protest. ये भी आ गया फिर प्रॉब्लम में. If there is a protest, there is going to be a problem. At the same time, the district collector has to deal with water crisis also. तो उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ऊपर आ रहे हैं. वाटर क्राइसिस भी फेस करना है, फार्मर्स का एजिटेशन भी फेस करना है, परसेप्शन फेस करना है, करप्शन के एलिगेशंस को फेस करना है, राइट? द इंडस्ट्री कैन नॉट बी क्लोज्ड. तीसरा डिलेमा आ गया. द इंडस्ट्री कैन नॉट बी क्लोज्ड एज दिस वुड रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स बीइंग अनएम्प्लॉयड. अब मुझे पता चला कि मुझे केस स्टडी में क्या क्या एड्रेस करना है. क्यों पता है? क्योंकि मैंने ये मार्क किया. अगर मैं मार्क नहीं करता तो इनमें से अब कितने पॉइंट है, अब देखो, अब चला जाता है, छोड़ो, 6-7 पॉइंट है जो आपको पता चले कि इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको मुझे एड्रेस करना होगा. अगर मैंने उनको मार्क नहीं किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया केस स्टडी को, तो मुझे पता है मैं 5 लिख लूंगा, 4 लिख लूंगा, 2-3 जो है वो छुप जाएंगे. Anyway, my case study is not complete. Why? I have not addressed all the issues that are given in the case. This is a perfect recipe for disaster, that you miss out on some important aspects in the case study. Start doing this in the practice sessions itself. Next session में जब हम केस स्टडीज को प्रैक्टिस करेंगे, आई विल गिव यू अ शीट विद प्रिंटेड क्वेश्चंस ऑन इट, because this was the first session. I was myself under prepared. I was traveling yesterday, so I could not print these files. But next, when we meet very soon, I'll conduct another session where we'll have a printed sheet with question where you write the answer there itself. Okay? Now, question उन्होंने खुद दिया है. क्या क्वेश्चन दिया है? पहला क्वेश्चन है, discuss all options available to the district collector as district magistrate. कि ये जो सिचुएशन सामने दिख रहा है उसको डील करने में जितने भी ऑप्शंस है आपके पास, उन सबको आप डिस्कस करो. ए. बी है, व्हाट सुटेबल एक्शंस कैन बी टेकन इन व्यू ऑफ म्यूचुअली कॉम्पेटेबल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. अब ये क्या आपको निकालने की कोशिश कर रहा है कि दोनों में एक मिडिल ग्राउंड लेके आना है. उन्होंने मेंशन नहीं भी किया होगा तो भी आपको ये करना होता है, इंडस्ट्री फार्मर दोनों में. And what are the potential administrative and ethical dilemmas for the district collector? अब इस केस स्टडी में उन्होंने सॉल्यूशंस नहीं पूछे आपसे. कुछ केस स्टडीज में लिखा होता है, पहला क्वेश्चन होता है, what are the potential ethical dilemmas in the above case, and which opinion do you think is the most appropriate? ये भी पूछा जाता है, what are your opinions and what is the most appropriate opinion. इसमें नहीं पूछा है. फिर भी आप ब्रीफली लिख सकते हो कि आप आगे क्या करोगे, लॉन्ग टर्म में क्या करोगे. ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग दिस. मेक अ ब्रीफ स्केच ऑफ व्हाट यू वुड डू. केस स्टडी समजली सगळ्यांना? ब्रीफली समजलीच असेल. हा, तर याला लिहायला चालू करा की तुम्ही काय याच्यामध्ये कराल अकॉर्डिंग टू द I'll just repeat the important words here.
तो सीवियर वाटर शॉर्टेज है, ओके। सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स हैं जिनको ये एक काम पे लगा रहा है। देन डिस्ट्रिक्ट में प्लंज इनटू अक्यूट वाटर क्राइसिस इफ एक्शन इज नॉट टेकन। अवेयरनेस कैंपेन चल रही है वाटर कंजर्वेशन की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है, विजिलेंस टीम्स है, राइट। फार्मर्स एजिटेटेड है, सो इंडस्ट्रीज यूज कर रही है लेकिन फार्मर्स को यूज करने नहीं दिया जा रहा है पानी। एंटी फार्मर करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये परसेप्शन बना है। फार्मर्स एजिटेट करेंगे, ये कहा है, ओके। ऐसे सिचुएशन में 3 क्वेश्चन है आपके सामने, उनमें आप क्या लिखोगे? डिस्कस ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दूसरा है व्हाट सुटेबल एक्शंस कैन बी टेकन इन व्यू ऑफ म्यूचुअली कॉम्पेटेबल इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट आर द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल डिलेमास इन दिस सिचुएशन, ओके। ट्राई राइटिंग जितना भी आप कलेक्ट कर सके इस क्वेश्चन में से एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करो, और हर कोई लिखेगा, ओके। जितना भी आप लिख सकते हो, जस्ट ब्रीफ स्ट्रक्चर लिखो कि इंट्रो में आप क्या करोगे, स्टेक होल्डर्स कौन है, फिर सीधा क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू कर दो। कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी उसमें से कौन सा सुटेबल एक्शन आप ले सकते हो जहां दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट एक हो, राइट। एंड इसमें एथिकल डिलेमास कौन कौन सी है, 3 क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है। या इंट्रोडक्शन छोड़ो, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो और इन 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करो। अब यहाँ पे पहला जो पार्ट आप लिखोगे वो है इंट्रोडक्शन। 2 तरीके हो सकते हैं लिखने के। वन इज यू राइट इंट्रोडक्शन एंड स्टेक होल्डर्स सेपरेटली, और you can include the stakeholders in your introduction itself, because there is no hard and fast one size fits all way of writing a case study. So how do you summarize the case? See, what is introduction? Basically you're summarizing the issue again in the introduction, highlighting the important points in the introduction कि ये चीजें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेटरी जो आपको केस दिया होता है उसमें से आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी होगा डीएम के लिए, या जो भी ऑफिशियल पोजीशन दिया होगा केस स्टडी में उनके लिए। नाउ फॉर एग्जांपल यहां देखो कि सिचुएशन क्या है, ये बता रहे हो आप कि दैट द डीसी इज कन्फ्रंटेड विद अक्यूट वाटर शॉर्टेज, ठीक है। ये हमने वहां पे भी अंडरलाइन किया था, तो ये लिख लिया हमने। देन एनफोर्सिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन टू प्रिवेंट ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। तो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो सकता है अगर प्रिवेंट नहीं किया तो। फार्मर्स एंग्री हो गए, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज एंगर्ड द फार्मर्स हु अलीज perception about the administration is formed within the farmers, so they allege that there is a preferential treatment to some industries which are operating in the areas. So ये वाला जो हमने ऊपर अंडरलाइन किया था ये भी यहाँ पे आ गया। Then while the farmers threaten prolonged protest करने की धमकी दे रहे, क्लोजिंग इंडस्ट्री इज नॉट फिजिबल, ये भी हमने कहा क्यों, उससे लॉस ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ऊपर जितने जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो हम समराइज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि ये इशू है, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और फिर लिखो कि डीसी को क्या करना होगा कि डीसी शुड एंश्योर दैट रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी अलोंग विद मेंटेनिंग फेयरनेस, ट्रस्ट एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो फेयरनेस, ट्रस्ट, सोशल स्टेबिलिटी ये क्या हो गए, ये वैल्यूज हो गए, ये आने चाहिए। अब यहाँ इंटीग्रिटी आ सकता है, कंपैशनेट आ सकता है, या और कुछ आ सकते हैं। ऐसे जो भी आप पढ़ोगे एथिक्स में, केस स्टडी पे डिपेंड होगा कि किस तरह का केस स्टडी आपको पूछा है। ये वैल्यूज आपको आने चाहिए कि क्या आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको लगेगी इस केस को एड्रेस करने में। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इशू है उसको समराइज भी कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर जो है उनको भी लिख रहा हूँ। तो थीसिस स्टेटमेंट, इन शॉर्ट आई कैन से दैट दिस इज अ थीसिस स्टेटमेंट जिसको मुझे नीचे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, now we straight away have the questions कि what are the options that are available to the district collector or the magistrate। okay? बहुत सारे लोग होते हैं कि याद रखना कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी में।
Many people tend to overwrite in case studies. I don't know how many case studies you have written till date. The way you are writing, I don't think so. आपने बहुत प्रैक्टिस किया है लिखने का, लेकिन ये टेंडेंसी है बहुत लोगों में, आप बहुत ज्यादा लिखते हो केस स्टडी में, हमें पता ही नहीं चलता कि कब रुकना है। हम ये भूल जाते हैं कि 250 वर्ड लिमिट है इसके लिए भी। आप 250 का आप 300 कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं। उससे ज्यादा करोगे तो फिर पेपर कंप्लीट कैसे करोगे? एथिक्स में कम मार्क्स आने का सबसे बड़ा रीजन है कंप्लीट नहीं होता है पेपर। क्यों कंप्लीट नहीं होता है? क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी नहीं समझ में आता है कि ए में क्या करें और बी में क्या करें, और बी में आप बहुत ज्यादा लिखते हो, यू ओवर राइट। तो रिमेंबर, आपको अगर ऑप्शंस पूछे जाएंगे ना तो 10 ऑप्शंस मत लिखो, कोई रिलेवेंट 5 ऑप्शंस लिखो, 4 ऑप्शंस लिखो। ये भी मत करो कि 2 ही लिखे ऑप्शन, क्योंकि 2 से ज्यादा पक्का हो सकते हैं। तो रिमेंबर दैट यू आर नॉट ओवर राइटिंग इन द केस स्टडीज, यू आर नॉट ओवर एक्सप्लेनिंग इन द केस स्टडीज, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ओके, सो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? आप पहला एक ऑप्शन है आपके पास कि आप एक स्ट्रिक्ट और यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट कर सकते हो वाटर रेगुलेशन का। यूनिफॉर्म मतलब किसका? फार्मर्स पे भी और इंडस्ट्रीज पे, दोनों पे भी एक ऑप्शन है। अब जब ऑप्शंस आप दे रहे हो ना, तब गलत क्या सही का ये मत सोचो। When they ask you what are the options available, they come up with multiple options. They're not asking you which is the right one, which is the wrong one, right? So come with maximum. अब कोई बोलेगा कि दोनों को भी, फार्मर्स को भी मत दो, इंडस्ट्रीज को भी मत दो, पीने के लिए रखो सिर्फ। ये डिप्लॉय विजिलेंस टीम्स और यूज जीपीएस एनेबल्ड मॉनिटरिंग ऑफ बोरवेल्स। ये लिखना क्यों जरूरी होता है कि यू शो द एग्जामिनर कि आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में। एआरसी रिपोर्ट क्या कहता है, सेकेंड रिपोर्ट, कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उससे ईज आ जाती है काम करने में। तो आप लिखो कि जीपीएस एनेबल्ड आप कर सकते हो, डीएम को घर घर जाने की जरूरत नहीं है, या आपकी जो विजिलेंस टीम्स है हर जगह नहीं हो सकती एक साथ, तो टेक्नोलॉजी यूज करो और सबको पानी बंद करो, इंडस्ट्रीज को भी, फार्मर्स को भी। दूसरा ऑप्शन हो सकता है टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस फॉर इंडस्ट्रीज, कि फार्मर्स को छोड़ो लेकिन टेम्परीज पे लगा दो, तो उनसे उनका वाटर ऑडिट करो, पीक टाइम एक्सट्रैक्शन जो है वो लिमिट करो। पीक टाइम मतलब क्या? जिस टाइम सबसे ज्यादा पानी लिया जाता है उसको कम करने की कोशिश करो। एंड एनकरेज और रिक्वायर द यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। आप क्या कर रहे हो? इनोवेशन ला रहे हो। नाउ पानी प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर प्रॉब्लम है ना, लेकिन आपके पास वेस्ट वाटर हो सकता है, उसको ट्रीट करके क्या यूज किया जा सकता है, उसके बारे में सोचो। क्या ये पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें अगर कुछ बचा हुआ डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज होंगे तो वो लैंड खराब कर सकते हैं, राइट? See, there are many cases wherein big industries they release the waste into rivers and streams, and the farmers end up using those the same water for their irrigation purposes, which destroys their lands. ये बहुत सारे cases आते हैं ऐसे. Okay, so you think of a possibility: can we use wastewater in industries which is treated? Recycling systems लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा, technology upgrade करो और minimize the dependence on fresh water. दूर की सोच रहे हो कि हर साल फ्रेश वाटर का इशू आ सकता है समर्स में, तो आप क्या करो कि उस पर डिपेंडेंसी कम करो, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके यूज करना शुरू कर दो, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओके, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है? इक्विटेबल एंड रेगुलेटेड वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म। सब में इक्वल इक्वल बांट दो। एक तो दोनों को बैन कर दो, फिर दोनों को इक्वल दे दो, ये भी हो सकता है ऑप्शन। तो क्या कर सकते हो आप? प्रोवाइड टाइम बाउंड इरिगेशन स्लॉट्स, जो अभी करता है गवर्नमेंट, आपको पता हो या ना हो। इरिगेशन के लिए एक स्लॉट होता है कि इसी टाइम में लाइट कंट्रोल करते हैं, उसी समय इरिगेट किया जा सकता है, तो इरिगेशन स्लॉट्स दे सकते हो। आप प्रमोट कर सकते हो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? विजन, दूर की सोच रहे हो कि पानी कम है, उससे लड़ने से अच्छा क्या है कि आप प्रमोट करो। और क्या आप जैसे आज आपको पता चला अब शॉर्टेज है, क्या कल से सब ड्रिप हो जाएगा? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ट्राइंग टू you know push drip irrigation for almost a decade now, and yet complete Maharashtra is not based on this precision agriculture. आज भी लोग बहुत सारे ड्रिप नहीं यूज करते हैं।
तुम्ही कोल्हापूरमध्ये गेलात, किती लोक आहेत सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिकडे नदीचं पाणी आहे ते ड्रिपच नाही यूज करत. And the government has been promoting for years now. So this is not something that you do it tomorrow, but you're thinking for the long term that you can promote drip irrigation, sprinkler irrigation, and ensure rationing based on crop criticality. Rationing of water. आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये होता है. केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में केप टाउन है, 2018 में पहली बार सिचुएशन हुआ था डे जीरो का, कि उनको पता चला कि अगले 3 महीने में जो सिटी को पानी सप्लाई होने वाला है वो खत्म होने वाला है. दैट इज डे जीरो. सो दे स्टार्टेड रेशनिंग ऑफ वाटर, 50 liters ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, स्ट्रिक्टली. उससे ज्यादा पानी देना बंद कर दिया. तो जब जब क्रिटिकल सिचुएशंस आती है ना पानी में, तो पानी की रेशनिंग की जाती है, याद रखना हमेशा. ओके, सो दैट इज वन इनोवेटिव वे यू कैन कम अप विद. देन एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव वाटर सोर्सेस, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. कहीं से लाया जा सकता है क्या, टैंकर से दिया जा सकता है क्या, कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं. सो अरेंज लिमिटेड टैंकर सप्लाई फॉर क्रिटिकल नीड्स. इसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों है. टैंकर माफिया बन जाएगा अगर मैं इससे करने लग जाऊं तो अरेंज लिमिटेड टैंकर सप्लाईज फॉर क्रिटिकल नीड्स. देन एक्टिवेट ड्रॉट रिलीफ नॉर्म्स, कोऑर्डिनेट विद नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एक्सिलरेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स. ये भी आप सारे मेजर्स कर सकते हो. अब इन मेजर्स का मैं मेरिट्स डिमेरिट्स इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पूछा नहीं गया है. In most of the case studies, they will clearly ask you what are the, you come up with opinions and give the merits and demerits of those opinions. Now, what you're going to do is, many students, they think that this is the standard structure of the case study, that I have to write the merits and demerits. No. Why? If it is not asked and you end up writing, you're overwriting. पूछा नहीं है ना आपसे, मत लिखो. क्यों? अगर वो लिखते बैठोगे तो आपके 250 वर्ड्स ऐसे ही हो जाओगे. नीचे के दूसरे 2 क्वेश्चंस कैसे एड्रेस करोगे? सो दे ओनली आस्क्ड यू ओपिनियंस, सो राइट द ओपिनियंस. ओके. अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने उस आगे, 5वां स्टेक होल्डर को कंसल्ट करो. जो फार्मर्स है, इंडस्ट्रीज है, उन सबको कंसल्ट करके एक वे आउट निकालो. ये हो सकता है. अब सुटेबल एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं कि दोनों का फायदा हो, ये पूछा है आपसे. तो सिचुएशन तो आपको समझ गई है कि फार्मर्स एजिटेटेड है. उनको लगता है कि ब्राइब करप्शन करके इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है और हमें रोका जा रहा है पानी यूज करने से. तो बीच में से क्या कर सकते हो जहां फार्मर्स भी सेटिस्फाई हो जाए, इंडस्ट्रीज भी चलती रहे? ऐसे क्या कर सकते हो आप? एक ऑप्शन नहीं पूछा आपको. उन्होंने पूछा है कि दोनों के इंटरेस्ट एड्रेस हो, ऐसा क्या किया जा सकता है. तो क्या लिख सकते हो आप? कुछ वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वाले वर्ड्स जो है होते हैं केस स्टडीज में. सो व्हाट यू कैन डू इज ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू रेशनिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये भी तो भूल नहीं सकते कि प्रायोरिटी हमेशा ड्रिंकिंग वाटर की होनी चाहिए. ओके. while permitting controlled irrigation and regulated industrial use. मैं दोनों को बीच वाला एक कुछ तो सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि और कैसा होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स अलीज कर रहे थे कि करप्शन हो रहा है, प्राइब्स दिए जा रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. फार्मर्स अलीज कर रहे हैं कि उनको ज्यादा दिया जा रहा है इंडस्ट्रीज को, तो इक्विटेबल होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट, प्रोमोट वाटर कंजर्वेशन. लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, वो इमीडिएटली नहीं हो सकता है. फिर भी आप लिखोगे कि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सकता है, माइक्रो इरिगेशन को इंसेंटिवाइज करो फार्मर्स को. राइट. मैंडेटिंग क्लोज्ड लूप रिसाइकलिंग एंड रीयूज फॉर इंडस्ट्रीज, कि इनको कंपलसरी करो कि आप रीयूज करोगे. दोनों को एड्रेस कर रहे हो आप. फार्मर्स को कह रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म में जाके माइक्रो इरिगेशन करना ही होगा, इंडस्ट्रीज को आप बता रहे हो कि आपको रिसाइकलिंग करना ही होगा. राइट. देन थर्ड, institutionalizing coordination via multi-stakeholder water management strategy. Always remember, decision making should never be top down. When you're as a DM, as any person of position in power, your decision has to be in consultation with the stakeholders. Always remember this. अगर आपने लिखा, मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पावर है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मत लिखो ऐसे.
You should always show that you're open for suggestions, discussions as an officer, right? So मल्टी स्टेक होल्डर वाटर मैनेजमेंट टास्क फोर्स बना सकते हो, जहां जॉइंट मॉनिटरिंग हो सकता है, ग्रीवेंस रिट्रेसल हो सकता है. ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म का बेनिफिट क्या होता है? कोई गुस्सा करेगा ही नहीं, है ना. अगर ये फार्मर प्रॉब्लम में ये आके तुरंत ग्रीवेंस रिट्रेसल में बताएगा ये हो रहा है, ये बताएगा, तो सारे एक साथ आएंगे ही नहीं कभी. Why there is grievance redressal? Individual grievances can be readdressed. Why? I do not want them to become collective and be a big issue. तो ऑफिसर भी ये सोचना चाहिए अपने कि मैंने ग्रीवेंस रिट्रीवल मैकेनिज्म अगर बना दिया तो सारे एक साथ एजिटेशन करने क्यों आएंगे? अगर मैं इनका रिजोल्व करो तो ये नहीं आएंगे, इनका किया तो ये नहीं आएंगे, तो ग्रुप कभी बनेगा ही नहीं, राइट? सो आई एम एड्रेसिंग द वोल्केनो बिफोर इट बर्स्ट. तो ग्रीवेंस रिट्रेसल एक किया जा सकता है. फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सच एज शेयरिंग रियल टाइम ग्राउंड वाटर डेटा. छुपा नहीं रहे हो आप, जो है वो बता रहे हो. पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन लिमिट्स, कि इंडस्ट्रीज ने इतना ही निकालना है, ये लिमिट्स है, ये देख लो आप, सब देख लो और मॉनिटर करो आप, राइट? थर्ड पार्टी ऑडिट्स टू एड्रेस एलिगेशन ऑफ बायस. फार्मर्स अलीज कर रहे ना गवर्नमेंट बायस्ड है, करप्ट है, तो थर्ड पार्टी एनजीओ को लगा दो, उससे ये इशू ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा. कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है. ओके लिख लिया. सी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल डिलीमास. क्या है इसमें? एथिकल डिलीमास अगर आपको लिखने को पूछे जाए तो रिमेंबर व्हाट आई सेड, यू विल हैव टू हैव अ लिस्ट विद यू. स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट लिस्ट. व्हेन यू आर स्टडीइंग सेक्शन ए, स्टार्ट राइटिंग द वर्ड्स सेपरेटली. जो एथिकल डिलीमास आपको लगता है वो लिखना शुरू कर दो अलग से. किसी भी केस स्टडी में सीधा पूछा जाएगा कि लिखो एथिकल डिलीमास क्या है, तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन राइटिंग एन केस स्टडी इज वोकैबुलरी पार्ट. यू डोंट हैव द वोकैबुलरी टू राइट इट. बहुत लोगों के दिमाग में है कि क्या किया जा सकता है, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास वो एथिकल वोकैबुलरी नहीं है. वो जितना ज्यादा पढ़ोगे आप एथिक्स उतना आ जाएगा, लेकिन उसको एक एफर्ट करना होगा कि ये कम से कम एथिकल डिलेमास हमें सब पता होनी चाहिए. तो यहां पे डिलेमा क्या है? इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी. इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी. अब मुझे यहां पे क्या करना है कि इक्विटी मतलब क्या है कि फेअर एक्सेस विदाउट अंडरमाइनिंग इकॉनॉमिक प्रोडक्टिव्हिटी. मतलब सगळ्यांना फेअर ऍक्सेस पण मिळाला पाहिजे, पण एफिशियन्सी प्रोडक्टिव्हिटीची कमी पण नाही झाली पाहिजे इंडस्ट्रीची. हा डिलेमा आहे. याला देऊ का याला देऊ, किसको देना है? नेक्स्ट, लाइवलीहुड प्रोटेक्शन वर्सेस रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी. क्रॉप को जलने दें या पानी को ओवर एक्सट्रैक्ट करें, ये डिलेमा है. लाइवलीहुड का इशू, लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करे या रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करे. एनवायरमेंट, नेचर वर्सेस नीड्स हमेशा केस स्टडी आता है. एंड नाउ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इट इज the hottest topic in all the case studies. So we should balance farmers crop survival and with a long term groundwater preservation plan. दोनों भी मेंटेन करना है. इनके क्रॉप से भी जलने नहीं देंगे और लॉन्ग टर्म में ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेंगे. इम्पार्शलिटी वर्सेस परसीव्ड बायस, जो फार्मर्स के दिमाग में था. ओके, सो काउंटरिंग द एलिगेशंस ऑफ करप्शन डिस्पाइट यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट. ये गवर्नमेंट को दिखाना होगा. ये डिलेमा है कि इसको कैसे सही किया जाए, कि फार्मर्स को जो लग रहा है कि यहाँ करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये भी एक डिलेमा है, राइट? तो इनको भी आपको एड्रेस करना होगा. लास्ट है शॉर्ट टर्म अपीजमेंट वर्सेस लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी बहुत, एज एन ऑफिसर ये बहुत जरूरी होता है. डोंट टेक डिसीजंस विच मेक पीपल हैप्पी. आप पॉलिटिशियन नहीं हो, इलेक्शन आया अपीज करने लग गए हो, 10,000 दे दिए लड़कियों को, विमेन को, है ना? आप ऑफिसर हो, क्योंकि ये आपका घर का कुछ नहीं दे रहे हो आप यहां ऑफिसर हो. आप 3 साल बाद चले जाओगे, आपकी लेगेसी यहीं पे रहेगी. तो आप एक्शंस क्या ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए. ओके, सो शॉर्ट टर्म अपीजमेंट नहीं चाहिए. रेजिस्टिंग पॉपुलिस्ट प्रेशर्स दैट थ्रेटन फ्यूचर वाटर स्केर्सिटी. मैंने आप कहा फार्मर्स को करो यूज,
सब वाह वाह कर रहे, क्या कलेक्टर है। आप चले गए, फिर लोग मर रहे पानी को पीने के लिए नहीं है। डोंट, बेसिकली मैंने ये कहा कि आप विजनरी है, ये दिखाना है आपको। सो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस आप नहीं वर्कआउट कर सकते हो। सो दिस इज अ डिलेमा। एंड द लास्ट इज लॉ एनफोर्समेंट वर्सेस सेंसिटिविटी। अब ये एजिटेशन करेंगे तो मैं थोड़ी लाठीचार्ज करूंगा इन पे, सेंसिटिविटी भी दिखानी होंगी, क्यों, उनका लाइवलीहुड का क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो डिलेमा, दैट हाउ विल आई हैंडल द प्रोटेस्ट फर्मली येट एम्पैथेटिकली। प्रोटेस्ट को हैंडल भी करना होगा, लेकिन एम्पैथेटिकली करना होगा, ना कि आप बॉर्डर बंद कर दो, ये बीच में से कंक्रीट का वॉल बना दो, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में हुआ था दिल्ली में। वो एम्पैथी नहीं है, राइट। They have right to demonstrate. So as an officer, what you're going to do is you'll handle the protest firmly but empathetically to maintain order without escalating tensions. Order भी maintain करनी है, लेकिन वो tensions को escalate भी मत होने दो। तो इतने सारे आपको यहाँ पे ethical dilemmas इस केस में दिखेंगे। Okay, now see, I know this is not easy to write. अगर कोई भी आपको बताए की नाही बहुत आसान होता है, केस स्टडीज मतलब क्या होता है, गाव गप्पा मारायच्या असतात अशाच, इट इज नॉट दैट इजी। इट इज ऑल्सो नॉट impossible. You can slowly master this art of writing good case studies, provided you're good with section A, you're good with observation, you have lot of real life examples. ये धीरे धीरे आप बिल्ड कर सकते हो। ओके, अब क्या करोगे कि ये पीडीएफ बार बार पढ़ो कुछ दिनों तक, नेक्स्ट सेशन जब लेंगे तो एक प्रिंटेड कॉपी शीट मिलेगा आपको, जिसपे लिखा होगा कि केस लिखा होगा, उसी पे आपको डिस्कस करना है। ओके, और तब एक प्रॉपर रियल लाइफ एनवायरनमेंट में टाइम लगा के लिखना शुरू कर देंगे। तो आप वो जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है एग्जाम का, उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके तरफ क्या रेडीनेस होनी चाहिए कि आपने पढ़ा है सब कुछ। जैसे सर पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक पढ़ते रहो, सर के साथ रहो, जो वोकैबुलरी है एथिक्स की, उसको और ज्यादा यूज में कैसे ला सकते हो आप, ये कोशिश करो। ओके, एंड देन ऑटोमेटिकली दिस विल इम्प्रूव। कोई जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसे को क्या किया जाए, ऐसे को कैसे पढ़ना होता है। मैंने बहुत बार कहा है कि ऐसे पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। आप जीएस जब पढ़ते हो ऑटोमेटिकली ऐसे पढ़ रहे हो। ऐसे में क्या चाहिए, लिखने का स्किल चाहिए, लेकिन जो नॉलेज है वो तो सब आपका ऐसे का जीएस का है। जो पूरा डायमेंशन का व्हील है, आप कहां से लाते हो, सारे एथिक्स जीएस से लाते हो। तो सेम इज अबाउट केस स्टडीज। There is no one way of writing a case study. There is no one way of preparation, and absolutely not mugging up the previous case studies. Absolutely not. Many think बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे सर जो पिछले ऐसे आए थे उनका किसी का मॉडल पढ़ता हूं। अरे जिस किसी और ने लिखा हुआ ऐसे मॉडल कैसे हो सकता है? आपका ऐसे उससे अलग हो सकता है, या केस स्टडी मॉडल कैसे हो सकती है कोई? आपकी सोच उससे अलग हो सकती है। आप आपकी सोच को मारोगे अगर किसी का रेडीमेड पढ़ रहे हो तो। पहले आप सोचो, आप लिखो, कुछ भी स्क्रिबल करो और फिर किसी का मॉडल देखो। अदरवाइज इट विल ओनली वो स्पून फीडिंग की तरह हो जाएगा। यूपीएससी में भी लिखने के टाइम लगेगा यार, कोई तो देखना चाहिए मॉडल पहले। तो ये आदत मत लगाओ, धीरे धीरे लिखते लिखते ही इंप्रूव हो जाएगा केस स्टडीज। और करेंगे प्रैक्टिस, और एक वी स्टिल हैव 45 days. So by then we'll finish ethics section A also, and we'll have some more sessions on case studies writing. एक बार एक नैक आ गया, आपको समझ आ गया, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा केस स्टडी लिखना शुरू कर दोगे। ओके, वेरी सून विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन ऑन केस स्टडीज। एनी क्वेश्चन? ओके, like I say, it is very rare that I come to your batch, but of course remember you all have my number. If there's any problem, feel free to connect, right? एकेडमिक रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, जी को कनेक्ट कर सकते हो, मुझे कर सकते हो। ओके, यस, लेट्स स्टॉप ऑन दिस नोट। थैंक यू।